Good morning to all my dear students. Today we are starting with the fire insurance concept. Okay, in the last lecture we have studied life insurance. What is life insurance? What is marine insurance? Now this is the point of fire insurance. Okay, आग लगने की वजह से if you have insured some of your property, if you are a big businessman, if you have a bulk quantity of production factory with yourself, okay, so such a factory should be secured by having fire insurance. Okay, see, a fire insurance contract is an agreement whereby the insurer in return for the consideration, मतलब क्या, in return for consideration means premium के returns में undertakes to indemnify to assure that the insured against the loss to property due to fire. ओके, इंश्योरर क्या करता है, इंडेमनीफाई करता है, एक एश्योरेंस देता है, एक गारंटी देता है कि इन द रिटर्न्स ऑफ योर प्रीमियम आई विल बी देयर टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ योर प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर. Any property which is subject to damage by fire can be insured against fire. The loss due to fire, lightning and explosion, that is blast, is also covered by fire insurance. ओके, अगर कुछ करंट हो गया, कुछ स्पार्किंग हो गया एंड उस वजह से भी अगर आग लग जाती है, सो ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड अंडर द फायर इंश्योरेंस. Okay, and whatever the principles we have studied, all those principles of insurance are applicable over here. Is that clear? Now ये अभी हम क्या सीखेंगे, we are going to study different types of fire insurance policy. Under it, first is valued policy. The same valued policy we have studied in the marine insurance. What does it mean? अगर मेरे goods की actual value, if I don't know if it will get lost due to fire or if it will get lost in the marine transit, okay, तो मैं क्या करूँगी, I will pre-decide the value of my goods and that pre-decided value will be taken by that particular इंश्योर्ड पर्सन. ओके, इंश्योरेंस कंपनी से वो प्री डिसाइडेड वैल्यू क्या किया जाता है, लिया जाता है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इफ द लॉस विल ऑकर ड्यू टू फायर. दिस इज व्हाट वैल्यूड पॉलिसी. सी, अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मार्किंग अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस निकालते टाइम ही उसकी वैल्यू भी क्या की जाती है, फिक्स कर दी जाती है. द इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर. Okay, suppose I have taken such type of valued fire insurance policy and the value of my goods is rupees 5 crore. ओके, सो irrespective ऑफ लॉस, अगर आग लग जाती है, अगर मेरे सामान कुछ बच भी जाता है बट ऑलरेडी आई हैव वैल्यूड फॉर दोज गुड्स फॉर रुपीज़ 5 करोड़, तो मुझे 5 करोड़ रुपीज़ मिल जाएंगे. Valued policy is taken for those goods whose value becomes difficult to calculate in case of loss by fire. So which type of goods are like that? Okay, जिसकी वैल्यू हम क्या कर नहीं सकते, it is very difficult to evaluate their calculation. So such type of goods are like artwork, sculptures, पेंटिंग्स एक्सेट्रा. ओके, बहुत बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग्स होती है जिसके वैल्यू करना मुश्किल होता है अगर वो आग की वजह से इफ़ इट डिस्ट्रॉयड, सो इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इवैल्यूएट देयर कैलकुलेशन. ओके, सो इन दैट केस वैल्यूड पॉलिसी टेक्स प्लेस. नेक्स्ट इज specific policy. Okay, now what is specific? In case of specific policy, the property is insured for a definite sum irrespective of market value. Okay, now pay attention. The market value of my goods are 2 lakh. Okay, but I have taken the policy for rupees 1 lakh only. Okay, तो मैंने 1 लाख का पॉलिसी निकाला है एंड दैट पॉलिसी इज स्पेसिफिक पॉलिसी. तो अगर मेरे गुड्स 90,000 के जल जाते हैं, सो आई विल गेट 90,000 रुपीज़ ओनली. ओके, सो इफ देयर इज अ लॉस
stated amount will have to be paid to the policy holder. What does it mean? जो stated value कितना था, मेरे goods कितने के हैं, 2 लाख रुपीज़ के, out of which I have taken the policy for rupees 1 lakh and out of which 90,000 के गुड्स जल गए तो उतने ही पैसे मुझे मिलेंगे, स्पेसिफिक. Okay, so in this policy the actual value of the subject matter is not considered. The subject matter की actual value कितनी थी, रुपीज़ 2 लाख, बट मैंने इंश्योरेंस कितने का निकाला है, 1 लाख का निकाला है. ओके, उसमें से भी मेरे गुड्स कितने के जल गए, 90,000 के जल गए, तो मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे. सब्जेक्ट मैटर कितने का था, 2 लाख का. सारे के सारे के अगर गुड्स जल गए, मेरे 2 लाख के गुड्स, बट मैंने पॉलिसी कितने का निकाला है, 1 लाख का, so I will get 1 lakh rupee only. Okay, see there here they have given you example. For example, a property of rupees 1 lakh is insured for 75,000. Okay, मेरी प्रॉपर्टी कितने की है, 1 लाख की, बट मैंने इंश्योरेंस कितने का निकाला है, ओनली फॉर 75,000 एंड द लॉस ड्यू टू फायर इज रुपीज़ 40,000. ओके, अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी, उसमें से 75,000 की प्रॉपर्टी का मैंने इंश्योरेंस निकाला और उसमें से 40,000 के गुड्स अगर जल गए, सो कंपनी विल पे 40,000 रुपी. ओके, कंपनी भी उतना स्पेसिफिक अमाउंट ही पे करेगी. ओके, एज अ फुल सेटलमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज व्हाट स्पेसिफिक पॉलिसी. मैंने जितने अमाउंट का, जितनी वैल्यू प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है उससे कम अमाउंट का मैंने इंश्योरेंस निकाला और उसमें भी जितना लॉस हुआ है उतना ही स्पेसिफिक अमाउंट मुझे मिलेगा. दैट्स इट. ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, एवरेज पॉलिसी. नाउ व्हाट इज दैट एवरेज पॉलिसी? सी, it is a policy which contains an average clause. In this policy स्पेसिफिक गुड्स जल गए, उतनी स्पेसिफिक अमाउंट ही मुझे मिलती थी. अभी ये एवरेज पॉलिसी के अंडर क्या किया जाएगा, सपोज माई गुड्स आर फॉर रुपीज़ 2 लाख. ओके, 2 लाख के गुड्स से. ओके, जस्ट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन दिस. It is policy which contains an average clause. If the subject matter is not insured as per the exact market value or it is undervalue, then the insurer is liable to pay that percentage of loss for which it is insured. Percentage, underline it. Percentage of loss ही आपको क्या किया जाएगा, मिलेगा. Example, if a policy is taken for 1 lakh against the market value of rupees 2 lakh. ओके, मेरी जो गुड्स है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आज 2 लाख रुपए है, बट मैंने उसका इंश्योरेंस कितने का निकाला, 1 लाख का. व्हाट डज इट मीन? ऑलमोस्ट माई प्रॉपर्टी इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 100%, बट आई हैव टेकन द इंश्योरेंस ऑफ 50% ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ओके, एंड द लॉस इनकर्ड ड्यू टू फायर इज 50,000. अगर 50,000 का ही लॉस हुआ है, सो दिस 50,000 लॉस which has been incurred due to fire is for property of rupees 2 lakh. 2 लाख के प्रॉपर्टी के ऊपर 50,000 का लॉस हुआ है. ओके, सो हाउ मच अमाउंट आई विल गेट? आई हैव टेकन द इंश्योरेंस ऑफ 50% ऑफ माई प्रॉपर्टी. सो जितना लॉस हुआ है उसका 50% ही मुझे क्या मिलेगा, इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा. सो आई विल गेट द कॉम्पेंसेशन ऑफ रुपीज़ 25,000, 1 लाख के हिसाब से. ओके, आप ही सोचो, आपके प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू 2 लाख है, लेकिन फिर भी आप 1 लाख का ही इंश्योरेंस लेते हो और बोलते हो नहीं मेरी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है. नो, योर प्रॉपर्टीज वैल्यू इज नॉट 1 लाख, इट इज़ 2 लाख, बट यू हैव टेकन द पॉलिसी फॉर रुपीज़ 1 लाख. ओके, अंडर एवरेज क्लॉज. ओके, सो एवरेजली आपने कितने परसेंटेज का प्रॉपर्टी को कवर किया है फायर इंश्योरेंस में, 50% प्रॉपर्टी. सो जितना लॉस भी होगा तो उसका 50% ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा. दिस इज व्हाट एवरेज पॉलिसी. सो दिस इज व्हाट एवरेज पॉलिसी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉलिसी. Okay, now floating policy is completely opposite of specific policy.
or we can say it as, see the explanation, this policy can be taken for the goods which are lying at different locations or godowns or warehouses. Okay, suppose my business is very much vast enough. Okay, so I am keeping the storage, or I am keeping my goods in the different warehouse. Okay, so I need to secure my all those goods with the fire insurance for all those different locations, yes or no? And for that purpose, it is not possible for me to take for each and every go down specific policy. Okay, and just because of that, floating policy takes place. Since the quantity of goods lying at different locations fluctuate from time to time, it becomes difficult for the owner to take specific policy. Okay, तो specific policy लेने से क्या होगा, that policy will cover or that policy will provide safety and safeguard to your goods for that particular specific location only and for those specific goods only. Okay, बट अगर आपके गुड्स एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में हमेशा कम ज़्यादा होते रहते हैं, सो यू हैव टू टेक दिस फ्लोटिंग टाइप ऑफ पॉलिसी. सो द बिजनेसमैन और ट्रेडर्स टेक्स फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी. Such policy is taken for one sum and one premium for goods lying at different places. Okay, suppose मेरे पास 5 warehouses है. In those 5 warehouses, I am keeping my goods. Okay, sometimes that warehouse is completely vacant, empty. But still, that floating policy provides you the security of such insurance, fire insurance. Okay, and one lump sum premium I will have to pay to that insurance company. Is that clear? And if any kind of uncertainty takes place, the one sum, that is one particular principal amount, that is one sum assured amount I will get. Is that clear? This is what floating policy. Moving towards next, excess policy. Now what is that excess policy? See, when the value of goods or stock fluctuates, then excess policy may be taken by insured apart from normal policy. ओके, जैसे कि गुड्स कभी कम हो गए कभी ज़्यादा. टुडे इन माई वेयर हाउस 1 ton ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन माई गोडाउन. नाउ टुमारो 2 ton, द डे आफ्टर टुमारो half ton, like that. Okay, so in that case, see how this excess policy works. The insured will take 2 policies. excess मतलब 2 policies यहाँ पर रहेंगी. One policy for the amount below which the value of stock does not fall. ओके, कभी कभी क्या होता है, आज अगर मेरे पास 1 ton का माल है, गुड्स है मेरे गोडाउन में. ओके, टुडे इट विल बी 2 ton एंड ऐसे करते करते माय एक्सेस लिमिट इज अप टू 5 ton. 5 ton के गुड्स मेरे गोडाउन में पड़े हैं और यही गुड्स कम से कम 1 ton होते हैं. समटाइम्स इट मे बी 5 ton. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, अगर सपोज मैंने एक फ्लोटिंग पॉलिसी लिया, ओके, और गुड्स कितने के फायर से, अगर इफ़ माई गुड्स गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर फॉर 1 ton, 1 ton के गुड्स मेरे डिस्ट्रॉयड हो गए एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन द इंश्योरेंस ऑफ 5 ton. सो देर माइट बी चांसेस कि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन क्या कर सकता है, कुछ माल प्रैक्टिसेस कर सकता है कि नहीं, मेरे पास 5 ton के गुड्स का इंश्योरेंस है और एक्चुअल में 1 लाख के 1 ton के गुड्स अगर उसके जल गए, बट फिर भी वो क्या कर सकता है, 5 ton के गुड्स का कॉम्पेंसेशन ले सकता है. ओके, एंड वैसे देखा जाए तो दिस इज़ रॉन्ग थिंग. सो दिस थिंग शुड नॉट हैपन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस पॉलिसी टेक्स प्लेस. ओके, सो इन वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल, तो कितना अमाउंट है, 1 ton के गुड्स की अमाउंट. ओके, दैट अमाउंट और दैट गुड्स आई विल सिक्योर फॉर लिमिटेड स्टॉक. लिमिटेड स्टॉक कितना होता है, अप टू 1 ton. एंड अनदर पॉलिसी टू कवर एक्सेस वैल्यू बाय विच द प्राइस ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट. एक्सेस वैल्यू कितना था, 5 ton. 5 ton के गुड्स का जितना वैल्यू होगा वो. ओके, सो व्हाट डज इट मीन, मिनिमम वैल्यू फॉर 1 ton गुड्स एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर 5 ton ऑफ गुड्स. ओके, सो दिस एक्सेस पॉलिसी विल बी इन अ ब्रैकेट मैनर. ओके, एक ब्रैकेट बना दिया है 1 ton से लेके 5 ton के valued में. Now example they have given, see, for example, if the value of stock ranges between 1,50,000 and rupees 2 lakh,
then one policy is taken for 1,50,000 and another policy for the excess amount that is 50,000. ओके कितना था मेरे पास गुड्स कितने रुपीज़ के रहते हैं 1,50,000 से लेके 2 लाख तक के गुड्स रहते हैं. इज दैट क्लियर? सो एक पॉलिसी में क्या करूँगी 1.5 लाख की बनाऊंगी एंड द रिमेनिंग पॉलिसी अप टू 2 लाख मतलब कितना अमाउंट एक्सेस है 50,000 अमाउंट इज एक्सेस. सो सेकेंड पॉलिसी वुड बी फॉर 50,000. All of you clear? So this is what excess policy. Next is reinstatement policy. Now what is reinstatement? See, this is a type of policy where the insurer undertakes to replace the property or goods lost by fire. Okay, insurer क्या करता है प्रॉपर्टी अगर जल जाती है कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाती है so in that case such particular property will be replaced by insurance company. In this policy, instead of paying compensation, underline this, instead of paying compensation for the property lost by fire, the property is replaced. Okay, अगर मेरे goods जल गए तो goods के बदले I will get goods only. Okay, I will not get money related compensation. While paying the compensation, the depreciation amount of policy is not taken into consideration. So the rate of premium is higher in reinstatement policy. Now just take example. मेरे पास कुछ मशीनरीज है in my factory there are certain machineries and I am using that machineries from last 8 years. Okay, since from last 8 year I am using that machinery. So what does it mean? वो मशीनरीज के ऊपर 8 साल का depreciation लग गया है. In short वो मशीनरी 8 साल पुरानी हो गई है. Okay, in initial level the cost of those machineries were 20 lakh. बट अभी 8 साल होने के बाद द कॉस्ट ऑफ दोज मशीनरीज हैज़ बिकम 9 लाख. ओके, 8 साल तक धीरे करके मैंने डिप्रिसिएशन कुछ अमाउंट में चार्ज किया तो 20 लाख का मशीनरी 8 साल के बाद अभी कितने लाख का हो गया 8 लाख का हो गया, सॉरी 9 लाख का हो गया. इज दैट क्लियर? बट इन any kind of uncertainty if fire or blast exist in that particular फैक्ट्री और मेरे जो अभी राइट नाउ 20 लाख के मशीनरी जिसकी वैल्यू कितनी है 9 लाख है वो मशीनरी और गुड्स जल गए. सो इन दैट केस कंपनी दैट इज इंश्योरेंस कंपनी विल रिप्लेस द अनदर न्यू मशीनरी फॉर ₹20 लाख. ओके, दे विल नॉट कंसिडर ओवर ईयर द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन. मतलब वो क्या करेंगे पुराने अगर आपकी पुरानी मशीनरी जल गई है तो हम भी पुरानी मशीनरी देंगे, ऐसे चलेगा. वॉट डज इट मीन? दे विल नॉट कंसिडर द डिप्रिसिएशन अमाउंट, दे विल गिव यू अ ब्रांड न्यू मशीनरी. ओके, लेकिन अगर आपके गुड्स पुराने थे, आपकी मशीनरी पुरानी थी, योर प्रॉपर्टी इज़ ओल्ड इनफ एंड स्टिल दे आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन in the exchange of that property, they are ready to give you another property without charging depreciation and without having old machinery. So of course प्रीमियम भी कितना होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि पुरानी मशीनरी जल जाती है तो आपको नया ब्रांड न्यू मशीनरी मिलता है. Is that clear? So of course premium will be higher in reinstatement policy. Now moving towards next, comprehensive policy. Comprehensive policy includes all types of risk, not only fire. There might be chances due to some flood or earthquake or explosion, the fire will take place in your factory. There might be chances, yes or no. So आग लगने के अलग अलग भी कुछ कारण हो सकते हैं. So all those reasons will be included in comprehensive policy. See, normally a fire insurance policy does not cover losses due to riots, war, etc. Okay, अगर कुछ दंगल फसाद हो जाती है सो उसकी वजह से फायर इंश्योरेंस को कवर नहीं किया जाता. However, this policy covers a lot of risk under single policy. The risk may be loss of goods due to fire, explosion, earthquake, flood, etc. Is that clear? So all those are risks. Some natural risks also they have covered. Generally natural risk को covered नहीं किया जाता. If you have seen the movie that is Oh My God, okay, उसको क्या बोलते हैं मतलब गॉड की वजह से हुआ
कुछ नुकसान होता है, सो दे विल नॉट अंडरटेक सच टाइप ऑफ रिस्क और कॉम्पेंसेशन दे विल नॉट पे. But in comprehensive policy, some natural calamities also takes place. Is that clear? And next one is consequential loss policy. See, the fire insurance is originally purchased to indemnify the material loss only. Indemnify मतलब क्या? एक गारंटी दिया है कि जो नुकसान आपका हुआ है उतने ही अमाउंट आपको क्या मिलेगा एज अ कॉम्पेंसेशन दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे. So this is what fire insurance exactly means. The intangible interest was not indemnified. मतलब ऐसे गुड्स और ऐसी कुछ चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते वो भी तो लॉस हो गया है, लेकिन वो लॉस दे नेवर कंसिडर अंडर इंडेमनीफाइड. इंडेमनीफाई मतलब क्या? गारंटी देना. तो वो गारंटी नहीं देते कि अगर आपका कुछ भी इंटेंजिबल लॉस हुआ होगा तो उसको भी हम पैसा देंगे. Thus, the consequential loss policy includes the loss of tangible and intangible property. Okay, generally fire insurance does not consider intangible losses, but अगर आपको वो लॉस भी कवर करना है इन योर पॉलिसी, सो यू मे गो फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस पॉलिसी. कॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या? कॉन्सिक्वेंस हो गया और वो लॉस हो गया, अदरवाइज आपके हाथ में उतना अपॉर्चुनिटी रहता कि आप उतना प्रॉफिट कमा लेते, लाइक दैट. ओके, दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन इंडेमनिटी दैट इज गारंटी टू द इंश्योर्ड फॉर द लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग. What does it mean? In your warehouse you have stored some goods, okay, and to for the safety and safeguard of that goods, अगर कोई चोरी करके चला गया तो सो इसीलिए आपने क्या किया है, यू हैव मेंटेन दोज गुड्स इन वन वेयर हाउस. आप वो वेयर हाउस का भी भाड़ा दे रहे हो. दैट वेयर हाउस इज नॉट योर ओन वेयर हाउस, एंड एट द सेम टाइम you have incurred some expenses on security guards also. इतना सब कुछ करके भी फायर लगकर वो आग से क्या हो गए, जलकर राख हो गए. ओके, दैट गुड्स गेट्स डिस्ट्रॉयड. सो आपके जो स्टैंडिंग चार्जेस थे, ओके, विच हैज़ बीन पेएबल, बट अभी आग लगने के कारण अब आप पे नहीं करोगे. नो, यू हैव टू मेक पेमेंट टू दैट सिक्योरिटी गार्ड, यू हैव टू मेक पेमेंट फॉर द रेंट ऑफ दैट वेयर हाउस. येस और नो? वो जो ओनर्स रहेंगे वो तो पैसा मांगेंगे. सो ऑल दोज मनी, ऑल दोज कॉम्पेंसेशन विच इज़ इंटेंजिबल इन नेचर, जो लॉस था ये इंटेंजिबल लॉस भी क्या करेगा, ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कवर करके देगी. एंड एट द सेम टाइम अगर वो गुड्स आपका कल डिलीवरी होना था, ओके, कल डिलीवरी होना था लेकिन आज रात को ही गुड्स जल गए, सो वो डिलीवरी की वजह से आपका प्रॉफिट जो होने वाला था, सो दैट अपकमिंग प्रॉफिट you face to fail that particular profit. Okay, you fail to face that particular profit, so that particular net profit also that company will pay off. Okay, so this is what consequential loss policy. Is that clear? Now here we have completed with all the types of fire insurance. ओके, एंड एट द सेम टाइम मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी हमने कवर किया है. सो इन शॉर्ट द वोल इंश्योरेंस सर्विसेज टॉपिक इज ओवर हियर. ओके, now in the next lecture we will start with another new topic. Till then you just have to note down all those things in your notebook. Okay, revise it properly and send me your homework. Thank you for the day.